Hello and welcome my favorite students. In previous class, we are discussed about your active immunity, which comes under acquired immunity. So immunity was two types. One was innate immunity and another was acquired immunity. Among acquired immunity, again acquired immunity is divided into two categories, that is active immunity and passive immunity. So active immunity, in which antibody is produced in our body by active process. That means our body actively involved in producing antibody. Clear now? Then active immunity, and another one is passive immunity, which comes under acquired immunity. Again, in active immunity there is two types. One is cell mediated immunity, but you may tell it B cell or T cell. T cell, normally T helper, T killer, the previous class I have already covered. And another one is antibody mediated immunity by humoral immunity. So remember, acquired immunity was two category. One is active, another one is passive immunity. Active immunity, passive immunity. Again, active immunity was one is two type. One is cell mediated immunity. जोटा कि आमे कहउचंती cell mediated immunity through T cell. Okay. Again, another one is humoral immunity. Humoral immunity, और या नाम थिला कौन ना antibody mediated immunity. Clear? Is it right? One is cell mediated immunity and another one is antibody mediated immunity. In cell mediated immunity, we have already discussed about T cell, T lymphocyte, and types of T lymphocyte, T helper, T killer, T memory cell. जो चारि प्रकार सेल थिला आमे ता विषय ऑलरेडी T cell बा T lymphocyte भितर पढि सारिछंती. In antibody mediated immunity comes under active immunity. Now we will discuss about antibody mediated immunity, but how antibody is produced, how antibody reacts, how antibody binds with antigen. So okay, now antibody mediated immunity. Clear? Antibody mediated immunity. In antibody mediated immunity, this is a active immunity. Clear? This is an antibody mediated immunity is an active. प्रथम मतलब antibody mediated active और acquired immunity. लिखिबो first sentence. This is a active and acquired immunity. In this class, active antibody mediated immunity, who plays important role here? Antibodies play the vital role or major role. Clear? So here what happens? Antibody will play a vital role, or antibody will neutralize the antigen which pathogen which comes into our body. Again, antibody mediated immunity, this is a very special type of immunity, but there is specificity in nature. This is specific in nature. Antibody mediated immunity is specific in nature. That means there will be specific antibody for a specific antigen.
जदि आम बॉडी को गोटे एंटीजन एंट्री करूची तापय गोटे स्पेसिफिक एंटीबॉडी तयारी हबो आ जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी तयारी हबो सेटा अलग एंटीजन पई काम आसीबनी केवल सेही जो एंटीजन एग्नेस्ट रे गोटे एंटीबॉडी तयारी हितला सेही एंटीबॉडी अलग एंटीजन एग्नेस्ट रे काम करिवो नाही दैट मींस इट इज स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर एंटीजन माने करो गोटे एंटीजन प्रोडक्शन हेची ए गोटे ए इज ए एंटीजन या एग्नेस्ट रे गोटे एंटीबॉडी प्रोड्यूस हैला बा तयारी हैला हम बॉडी ए दिस इज एन एंटीबॉडी दिस एंटीबॉडी विल neutralize this antigen or this antibody will protect the body from this type of antigen from A antigen but this antibody will not act against another antigen suppose there is a B antigen if this antigen B antigen enter to our body then this antibody cannot protect our body against this antigen समझ में आ रहा है ना एई एंटीबॉडी ता केवल एई एंटीजन एग्नेस्ट रे काम करिवो एई एंटीबॉडी ए बी एंटीजन एग्नेस्ट रे काम करि परिबो नाही बा अलगा गोटे एंटीजन जदी हम बॉडी को आसीची दैट cannot protect our body clear so this antibody or every antibody has a specific in nature that means they will act against a particular antigen okay which induce to production of that antibody देखो antibody when antibody will produce and the function of antibody is to neutralize the specific antigen clear to neutralize specific antigen antibody का काम होची से पर्टिकुलर गुटे एंटीजन को न्यूट्रलाइज करियो कारण से पर्टिकुलर एंटीजन द्वारा बा एंटीजन ताको इंड्यूस करियो द्वारा से सृष्टि होता है प्रथम कथा when antibody will be produced in our body when केते बेले तमे आंसर इज when a specific antigen enters our body okay when a specific antigen enters our body it induces the production okay it induces the production of a specific antibody by beta cell or by beta cell derivative B cell derivative that is plasma cell okay so let's analyze the sentence when a specific antigen enters suppose A antigen enters this is a antigen A enters our body it induces the production of a specific antibody A antigen entry gala hala से कौन करिवो A antigen induce करिवो the production of a specific antibody by B cell ये A antigen in fact there is our B cell by beta cell in our body A antigen what will do it will go to our blood and induce the B cell that is B lymphocyte to produce antibody against this antigen so it will go and induce beta cell or beta cell after seeing the presence of A antigen will be induced or will be stimulated and it will direct or it will give instruction to plasma cell to produce antibody suppose A antibody A समझ में आ गया ना तीनटा जिंस इन्वॉल्व होजे ए एंटीजन एंट्री कला से एंट्री करिवो जतले ए एंटीजन एंट्री करि जिवो समस्त बैरियर आफ्टर पासिंग ऑल द बैरियर्स ऑफ इम्यूनिटी हां हमारा जतिक भी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस समस्त को क्रॉस कर दी हम बॉडी भीतर एंट्री करि गला
तो तापर कौन करिवो ना से ए एंटीजन को जतो देखबो हम बॉडी भितरे तो बी सेल कौन करिवो स्टिमुलेट होबो बा इंड्यूस हिजो या प्रेजेंस रे बा ये जाई ताको इंड्यूस करिवो तो बी सेल रे इंड्यूस होबा द्वारा कौन होबो ना बी सेल जो तयारी हिताय प्लाज्मा सेल होचंदी प्लाज्मा सेल इज द डेरिवेटिव ऑफ बी सेल प्लाज्मा सेल तयारी हिताय तो से प्लाज्मा सेल कौन करिवो बी सेल इंट्रोड्यूस हमर स्टिमुलेट हला परे बी सेल स्टिमुलेट होबो मींस प्लाज्मा सेल स्टिमुलेट होबो प्लाज्मा सेल कौन करिवो एंटीबॉडी तयारी करबा आरंभ कर दो हम कहते बी सेल एंटी बी लिपोसाइड एंटीबॉडी तयारी करे दैट इज राइट बट जो बी सेल डायरेक्टली एंटीबॉडी तयारी करना है कारण बी सेल डेरिवेटिव गुटे अछि प्लाज्मा सेल से एंटीबॉडी तयारी करे क्लियर एदा मोटा मोटी कहया गले बी सेल एंटीबॉडी तयारी करा जाय बोली बहिरे भी लिखा हितो किछि समस्त कहती भी है कि सेटा इनफैक्ट कौन हुए भितरिया कथा तार कौन ना देयर इज ए प्लाज्मा सेल व्हिच इज द डेरिवेटिव ऑफ बी सेल एंड इट प्रोड्यूस एंटीबॉडी है ना बात हम कहि परिबो प्लाज्मा सेल इज ए स्पेसिफाइड बी सेल स्पेशलाइज्ड बी सेल सेंसिटाइज्ड बी सेल बेटा सेल हां एमती भी कहि परिबो so B cell the antibody will produced when antigen will enter to your body otherwise antibody will not be produced in your body until there is no antigen inside your body there is no antibody will form in your body तार माने होची जे पर्यंत तम बॉडी रे एंटीजन एंट्री करी नाही से पर्यंत एंटीबॉडी तम बॉडी रे तयारी होबार कोनोसी कारण ही नाही आ जदी एंटीजन एंट्री कला ता एग्नेस्ट स्पेसिफिक केवल ता एग्नेस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडी तयारी हो सेटा के करियो ना प्लाज्मा सेल कोन दैट इज ए डेरिवेटिव ऑफ बी सेल बा सेंसिटाइज्ड बी सेल है सो नाउ देयर इज क्वेश्चन हाउ एंटीबॉडी लुक्स लाइक व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी तो हमें भाभी देले तो एंटीबॉडी एक्चुअली देखियो कि दैट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर व्हाट इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी सो लेट्स see or let's draw the structure of a typical antibody clear how antibody looks like in fact antibody is a y shaped structure समझ में आ रहा है ना एंटीबॉडी टा कोना देखा जाय छ ना दिस इज ए y alphabet y like structure and there are two light chain and two heavy chains in this Y structure of antibody. Okay. So so what is the structure? This is Y shaped. I have already told you. Okay. In fact, देखा सर देखिए हाँ एपटा टिके केंद्र है yes yes so this is a Y shaped. This is the structure of
and antibody. In antibody, what are present? There is present 2 long chain and 2 short chain. Okay, this is the long chain, this is the long chain. Okay, this is also a long chain. So how many long chain is there? 2 long chain are there. And how many short chain are there? 2 short chain are there. This is 2 short chain. दीटा लंबा चेन दीटा छोटा चेन एटी गुटे 2 शॉर्ट चेन नंबर है केते शॉर्ट चेन दीटा लॉन्ग चेन केतरा दीटा इन फैक्ट लॉन्ग चेन आर नोन एज हेवी चेन लॉन्ग चेन लो अदर नेम क्या व्हाट इज द अदर नेम लॉन्ग चेन द अदर नेम इज हेवी चेन and what is the other name of short chain this is light chain ओके जोड़ा छुआ लंबा चेन सेटा उजनिया आइबो जोटा शॉर्ट चेन छोटो होइबो से लाइट थबो लाइट माने हल्का हला सो लाइट चेन इज symbolized or recognized as L and heavy chain is written as X chain symbolically light chain or short chain is written as L chain and heavy chain is written as X chain. So L, how many L chain is there? 2 and 2. How many heavy chain is there? 2 H2. So antibody we can write the antibody symbolically as H2L2. Clear? Because H2 मतलब heavy chain. This is heavy chain. And L2 मतलब light chain, हल्का chain जोड़ा छोटा अछि. So H मान heavy chain दीटा अछि, long chain दीटा अछि. H2L2 लिख देला माने जानि जो जाने antibody विषय लिखते हैं. आउ केमिति लिख परिबा antibody की केमिति लिखबा immunoglobulin बा IG. Immunoglobulin, this is a globulin, this is a protein which protect or immunize our body, which play a vital role in our body immunization process. That means immunoglobulin. Immunoglobulin मतलब antibody. है सो एंटीबॉडी रे एटा पर सब ना उठा है एंटीबॉडी सेम जिंस हो ए जो चेन चार्टर रहिला ए चेन चार्टर सब केमिति कांटेक्ट हे गछथि ना डाइसल्फाइड बॉन्ड के भीतर अछि छ हला डाइसल्फाइड बॉन्ड एठी गुटे अछि एठी गुटे अछि एठी गुटे अछि एठी गुटे अछि हला सो these are disulfide bond present which holds this chain together clear disulfide bonds holds the chains of antibody together सागर धरी रखि ना नै एठी दीटा चेन एठी गुटे चेन से लाइट चेन और हेवी दीटा डाइसल्फाइड बॉन्ड अछंती जोरा कि लाइट चेन और हेवी चेन भीतर आ दीटा अछंती खाली लॉन्ग चेन भीतर हला सल्फाइड बॉन्ड माने एठु गुटे आसीथिबो S एठु गुटे S जाइथिबो सेपट गुटे S आसीथिबो हला तुमको पढै छी ऑलरेडी डाइसल्फाइड बॉन्ड कोडी जतले पढौतनी ह्यूमलिन विषय जो चेन पढौतली तीनटा चेन अछि ताका भीतर डाइसल्फाइड बॉन्ड अछि माने पढि ना नै एमति जो थिला S थिबो एठी आउडे S थिबो एठी गुटे S थिबो एठी गुटे सल्फाइड थिबो एक भीतर बॉन्ड हेतिबो दैट आर द डाइसल्फाइड बॉन्ड. So these are disulfide bond which holds the and what is the shape? This is Y-shaped structure. This side in this side antigen will be bound. जतले antibody तयारी हे जो antigen आसीला से antigen ता कोठी इच्छा लागि के रहबो अटैच रहबो बा antibody को जगह रे antigen को धरिबो. This side is specially meant to hold the antibody. ए जो साइड खालिया खालिया देखुछो एकु कोंदी छुआ पाराटोप कौन कोंदी पाराटोप. Paratome is the site where antigen gets bound हला बा gets bind एई जगह रे antigen को से चापिकी रखबो बा होल्ड करके रखबो. एठी दी गुटे पैरासाइट अछि ए पाराटोप अछि एठी गुटे पाराटोप अछि आउ गुटे साइड अछि जोरा मान कर इटा गुटे antigen लो जो साइट रे एंटीबॉडी लागिबो सेटा कोंती epitope. So these are two words which looks like similar epitope and paratope. epitope होची antigen ऊपर गोटे साइड पाराटोप होची एंटीबॉडी ऊपर गोटे साइड समझ आ गया ना.
एपिटोप होची एंटीजन ऊपर अछि, पैराटोप गोटे साइड जोटा कि एंटीबॉडी ऊपर अछि। तो एपिटोप कोडा ना जो एपिटोप होची एंटीजन ऊपर थिबा एक साइड जोटी एंटीबॉडी आसी कि लागिवो। तो एपिजन ना हमर सॉरी एंटीजन ऊपर थिबा साइड जोटी जाय कि एंटीबॉडी लागिवो बा तमे कहि परिबो पैराटोपटा जाय कि कोठी अटैच हुए ना एंटीजन को तो धरि रखे कि एंटीजन रो एपिटोप जगह रे ही लागि रहइबो। गोटे एंटीबॉडी विल अटैक एन एंटीजन, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होला पर कोन करे से एंटीजन को अटैक करे, एंटीजन को अटैक करियो ताको धरि रखियो तापर न्यूट्रलाइज करियो। तो से को जगह रे अटैक करियो को जगह जाय कि एंटीजन को धरिबो ना द साइट व्हिच इज कॉल्ड एपिटोप। हला एपिटोप पाखरे जाय कि एंटीबॉडी ताको अटैक करियो। हला तो सने एई जो जगह रे अछि एटी किए फिट हेक रहइबो ना एपिटोप ही फिट हेक रहइबो। बुझि पालो एपिटोप ही से धरिबो। तो सेमति गोटे दीटा तीनटा एपिटोप थे करे गोटे एंटीजन ऊपर जोटा कि से ताको धरि रखबो एंटीबॉडी। सो एपिटोप इज प्रेजेंट ऑन एंटीजन। मने रखितबो एपिटोपटा कहा पाखरे अछि एंटीजन पाखरे अछि आ पैराटोप कहा पाखरे अछि एंटीबॉडी पाखरे अछि। सो दीज आर ऑल अबाउट ऑफ योर एंटीबॉडी। हला again there is another thing, how many types of antibody are there? Mainly antibodies are classified into 5 category. Hala 5 category. Hala 5 categories are 5 types of antibody koi paribo. Hala 5 category mane 5 types of antibody. For example there is immunoglobulin A. Hala immunoglobulin D, immunoglobulin E, है ना, immunoglobulin G, immunoglobulin M, है ना. So there are 5 type of antibody. माना रख दो immunoglobulin A गोटे कैटेगरी, immunoglobulin D गोटे कैटेगरी, immunoglobulin E गोटे कैटेगरी, immunoglobulin G गोटे कैटेगरी, immunoglobulin M. हला immunoglobulin मतलब एंटीबॉडी. आमे एंटीबॉडी A लिखुना दे डायरेक्ट लिखुछनी immunoglobulin A. एंटीबॉडी D लिखा जाय नहीं, लिखा जाय immunoglobulin D. सेमते एंटीबॉडी M भी लिखा जाय नहीं, immunoglobulin M. बुझि पालो immunoglobulin G कोठी थला ना एटा देखिबो जतबेले तमरो प्लासेंटा रु जतबेले बेबी बाबू एंटीबॉडी क्रॉस करे पैसिव यूनिट रे तो सेटा कोंती कोन ना immunoglobulin G. हला डायरेक्टली एंटीबॉडी ता बॉडी भीतर को एंट्री करियो छुआर, दैट इज immunoglobulin G प्लासेंटा थ्रू रे जाय. मन रखितो नेवर फॉरगेट. So these are all about a basic concept of immunology under which we have now studied about the antibody and the nature of antibody. And again antigen, what is antigen? These are all about of antibody but antibody mediated immunity. When antibody mediated immunity will function only after entry of antigen the antibody production will happen and the antibody mediated immunity will come into the action. जे पर्यंत छुआ एंटीजन आसी नाही से पर्यंत एंटीबॉडी प्रोडक्शन होबो नाही. एंटीजन आसीला परे ही एंटीबॉडी प्रोडक्शन कोन बे ना आरंभ होए. हला के करे बी सेल द्वारा तयारी बी सेल करबो बा बी सेल रो जो डेरिवेटिव सेल तार अछि बी सेल लो जोटा कि प्लाज्मा सेल कहउछंती से करबो. दिस इज द स्पेसिफिक इन नेचर. हला गुटे एंटीजन पई स्पेसिफिक टाइप रो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होबो आ से स्पेसिफिक एंटीबॉडी अलगा कोन से एंटीजन एग्नेस्ट काम करबो नाही. केवल से गोटे प्रजाति रो बा गोटे टाइप रो एंटीजन एग्नेस्ट से काम करियो. सेति पय ताकू कहले स्पेसिफिक इन नेचर आ ता स्ट्रक्चर विषय रे भी हमें जानि ले. एंटीजन कोन एंटीजन होची गोटे एनी फॉरेन पार्टिकल एनी फॉर आउरे माने बस रखिबो एंटीबॉडी इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन. कोन कहले एंटीबॉडी टा गोटे कोन ग्लाइकोप्रोटीन. एटा हम कहि दे भूली गेली लिखि दबा तमे है ना. से जो हेवी चेन लाइट चेन विषय पढुथले वाइ से दैट आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. हला जो हेवी चेन और लाइट चेन विषय हमें पढिले से हेवी चेन लाइट रा प्रोटीन चेन बा ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन चेन कहि परिबो. हला ग्लाइकोप्रोटीन चेन. हला एंटीबॉडी रा कोन सब इम्यूनोग्लोबुलिन. हला एंटीबॉडी रा सब गुटे गुटे ग्लाइकोप्रोटीन. सो एनी फॉरेन प्रोटीन बा पार्टिकल व्हिच triggers antibody formation
production is called antigen. जेकोसी गोटे फॉरेन पार्टिकल बाहर सब्सटेंस जोटा आम बॉडी रे एंटीबॉडी प्रोडक्शन करे बा एंटीबॉडी प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करे ताको कुआ जीवा हमें कोन गोटे एंटीजन का विषय को जेटी एंटीजन हो जा एनी फॉरेन पार्टिकल व्हिच ट्रिगर्स एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एंटीजन. एंटीजन किए जे एंटीबॉडी प्रोडक्शन को ट्रिगर करे बा स्टार्ट कराए है जे स्टिमुलेट करे वो बी सेल को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी. जे कोनसी सेल गोटे जे कोनसी बाहर रो पार्टिकल से हो हम बॉडी भीतर नु एंटीजन आर नॉट रिलेटेड टू आवर बॉडी. एंटीजन गोटे बाहर सब्सटेंस जे का हम बॉडी भीतर एंट्री करिले कोन करिवो ना एंटीबॉडी प्रोडक्शन को आरंभ करबा बा एंटीबॉडी तैयारी करबा आरंभ होबा हम बॉडी भीतर. सो एनी फॉरेन पार्टिकल व्हिच ट्रिगर्स माने स्टार्ट करेबो बा आरंभ करेबो एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज antigen. So antigen is called antigen. Antigen is also a protein. If it is a non-living substance, antigen may be a living substance, may be a non-living substance. यदि ये non-living substance है तो that means it may be a protein, it may be a pollen, it may be a dust. This can act as a protein, antigen. Any dust, pollen रे जो flower अच्छी प्रोटीन यानी प्रोटीन बाहर किछि गुटे प्रोटीन बॉडी भीतर को एंट्री कला एरिया बॉडी रिएक्ट करिवो ताको दीज आर नॉन लिविंग फॉर्म ऑफ एंटीजन. एंड लिविंग फॉर्म ऑफ एनी पैथोजन इट तुम कहबे बैक्टीरिया वायरसेस ओके एनी पैरासाइट्स है ना प्रोटोजोआन्स प्रति माइक्रो ऑर्गेनिज्म जोटा बंची जोटा हम बॉडी भीतर को जाई रोग सृष्टि करूची ताको हम कहबा पैथोजन. सो दीज आर ऑल पैथोजन बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट प्रोटोजन. सो दीज आर आल्सो एंटीजन बिकॉज़ दे विल whenever they will enter our body antibody production will be started against them. हा जते बेले से माने बॉडी भीतर एंटर करियो ताको अगेंस्ट हमर बॉडी एंटीबॉडी तैयार करबा आरंभ करबो. आ जदी एंटीजन न होइतो हम बॉडी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करिवोनी. एंटीबॉडी प्रोडक्शन करूची माने से मानकु को रूप रे रिकॉग्नाइज करची बा ताको ट्रीट करची एज ए एंटीजन. सो बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट प्रोटोजन दीज आर लिविंग फॉर्म ऑफ एंटीजन. हला बा अन्य कोनसी फंजाई हला गुटे कपक मे बी हाँ नॉन लिविंग फॉर्म की करे प्रोटीन पोलेन डस्ट एरा सब एक्ट एज एंटीजन. एंटीजन 100% कोन हिथो ना गोटे बाहर रो सब्सटेंस हिथो हम बॉडी कैन नॉट रिकॉग्नाइज एज ए सेल्फ पार्टिकल है. तो सेल्फ नॉन सेल्फ विषय थोड़ा आगु कहितली कोडा सेल्फ हम बॉडी पे कोडा नॉन सेल्फ जोटा नॉन सेल्फ हिथो सेटा होची गुटे हम बॉडी तक एंटीजन रूपे ट्रीट करियो. जदि सेल्फ हिथो हम बॉडी ता अगेंस्ट कोनोसी एक्शन न करिवो नाही. सेल्फ माने हम बॉडी भीतर बॉडी रिलेटेड पार्टिकल हम बॉडी सहित से कंपैटिबल हिथो. जदि नॉन सेल्फ हिथो दैट मींस या हम बॉडी रो सेल्फ नो निजर नो दैट इज ए फॉरेन पार्टिकल दैट कैन नॉट बी कंपैटिबल इन आवर बॉडी. दैट मींस द फॉरेन पार्टिकल इज इनकंपैटिबल टू आवर बॉडी. हम बॉडी सहित से खाप कहि के रहि परियो नाही कारण हम बॉडी रो जो इम्यून सिस्टम रहला से ताको न्यूट्रलाइज करिया पय एंटीबॉडी तैयार करबो ता अगेंस्ट. समझ में आइला ना. नॉन सेल्फ सेल्फ जोटा सेल्फ सेटा हम बॉडी भीतर रे जिंस जोटा नॉन सेल्फ सेटा हम बॉडी बाहर रे जिंस जोटा नॉन सेल्फ हेतु सेटा गोटे एंटीजन रूपे काम करिवो. से जतरा हम बॉडी के आसीबो हम बॉडी ताको न्यूट्रलाइज मारिबा पय चेष्टा करिवो एंटीबॉडी द्वारा बा एंटीबॉडी तैयार करिबा पय. आ नॉन सेल्फ ता एंटीजन हेतु बुझि पाला ना नहीं. आ से हम बॉडी सहित कंपैटिबल करि परिबो नाही खाप कहि के चली परिबो नाही जदि गोटे नॉन सेल्फ पार्टिकल हेतु. So antigen is also a protein. It ये कौन करे? It triggers the production of antibody. है whenever antigen introduced into our body or enters our body by crossing all the barriers, the antibody production starts by the B cell or plasma cell. Clear? So antigen is also a protein. Antigen का काम होची से antibody थे बॉडी की करे रोग सृष्टि करेबो. आ जदी ताको ठीक समय रे हम बॉडी एंटीबॉडी तैयारी करी के ताको न्यूट्रलाइज करिबारे सक्षम होला ताहले हम बॉडी इम्यूनाइज हेला. जो कोरोना वायरस आसीची तार नष्ट हम बॉडी कोन करि पारनी एंटीबॉडी तैयारी करि पार नाही बा जहार तैयारी करि पार नाही ताकर डेथ हे होची किंतु मैक्सिमम लोक कर कोन होची कोडी दोची सेति पय मैक्सिमम लोक के छाडी जाची हो ना नहीं. तो न्यूट्रलाइज करिबा किंतु जहा को अलगा डिजीज अछथि तो हम इम्यून सिस्टम सेठी भी जाई इन्वॉल्व रहउछथि तो या पय टाइम ही पारनी. तो सेति पय कोन होती ना बॉडी ताको अगेंस्ट तैयारी कर पार नाही ताकर डेथ हे जाची.
है आ गोटे एटा एक्टिव यूनिट भितर रहिला तुम एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी आ गोटे रहिला पैसिव इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी छुआ किछि नाही मन रखियो एक्टिव इम्यूनिटी जो पढिले एक्वायर्ड इम्यूनिटी भितर तार उल्टा होची बा ऑपोजिट होची कोन पैसिव इम्यूनिटी तो पैसिव इम्यूनिटी कोन पैसिव इम्यूनिटी है पैसिव immunity in passive immunity the antibody enter by introduced है antibody is introduced directly into our body तो एठी कोन होतला एक्टिव इम्यूनिटी रे एक्टिव इम्यूनिटी सेल मेडिएटेड होला आ एंटीबॉडी मेडिएटेड सेठी कोन होतला हम बॉडी एक्टिवली तैयार करतला एंटीबॉडी कारण एंटीजन जेतला हम बॉडी के आसुतला हम बॉडी रो इम्यून सिस्टम कोन करतला एंटीबॉडी तैयार करतला दैट इज एक्टिव इम्यूनिटी बिकॉज़ आवर बॉडी एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द फॉर्मेशन इन द मेकिंग ऑफ एंटीबॉडी इन द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी आफ्टर सीइंग द एंटीजन बट हियर इन दिस केस आवर बॉडी will not produce antibody directly because the antibody are introduced into body directly बुझी पाछ माने ए केस रे पैसिव इम्यूनिटी कोन होचे हम बॉडी एक्टिवली इन्वॉल्व होनी तैयार करबा कारण हमें पा डायरेक्टली एंटीबॉडी बाहर तैयार हेची एंटीबॉडी जो सेटा को हमें मेडिसिन रूप रे हम बॉडी भीतर को खाइ नेला हमें खाइ देला हम बॉडी भीतर को एंटीबॉडी पळेला तो हम बॉडी के तैयार करिया पई पड़ो ना आम बॉडी एक्टिवली किसी रोल प्ले कला ना से कौन कह पैसिव इम्यूनिटी बाहर दि जाव तुमको एंटीबॉडी तैयारी करके बाहर को दिया बुझिपार तो फॉर एग्जांपल आम एंटीबॉडी खाऊँ एंटीबॉडी मेडिसिन हाँ जेकोसी बैक्टेरियल डिजीज हो वायरल डिजीज हो जो भी तुम एंटीबॉडी गुड़ा किसी मेडिसिन ऊपर खाऊ दैट इज एंटीबॉडी मेडिसिन एंटीबॉडी जो मेडिसिन खाऊ से एंटीबॉडी एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक कहि परिबो है नहीं आउ एंटीबॉडी कोड जाउची इम्यूनोग्लोबुलिन जी जो मां पाखर छुआ पाख को जाए इम्यूनोग्लोबुलिन जी है ना नहीं प्लासेंटा थ्रू रे जाए पढ़े छी ऑलरेडी तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी थ्रू प्लासेंटा कहा पाख को जीव प्लासेंटा थ्रू रा लिखु ना थ्रू प्लासेंटा टू बेबी हां दैट इम्यूनोग्लोबुलिन जी बेबी रो बॉडी सेटिक प्रोड्यूस करू ना इम्यूनोग्लोबुलिन जी कारण ता मां पाखरु छुआ पाख को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस हो जाउची प्लासेंटा थ्रू रे जते बेले बेबी आ मां भितरे प्लासेंटा रो कनेक्शन थिला सेते बेले मां टू छुआ पाख को कोन जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंट्री करी जाए एटा होची पैसिव इम्यूनिटी कारण छुआर बॉडी एठी प्रोड्यूस करू ना एठी मां पाखरु जाउची बाहरु जाउची छुआ बॉडी की सो दैट इज पैसिव इम्यूनिटी है ना अगेन कॉलर्स द एंटीबॉडी इन कोलोस्ट्रम जो कोष क्षीर छुआ जन्म होला परे फर्स्ट येलो टाइप रो जो मिल्क फीड करे बा छुआ खाए माठार सेटा कोलोस्ट्रम कहंदी कोष क्षीर सेतरे भी एंटीबॉडी थाए छुआ जोटा कि बॉडी छुआ रो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कारण ता छुआ बॉडी एते एक्टिव हेइ न था सेते बेले बेबी थाए ना जन्म होता नुआ नुआ तो तार बॉडी एते रोग प्रतिरोधक शक्ति आसी न थाए तो बॉडी एते प्रोड्यूस कर परियनी बाहर जदी कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंट्री कले तो ता बॉडी प्रोटेक्ट कर परिबो नाही सेति भाई कोन होवे ता बॉडी ता इम्यून सिस्टम एक्टिव हेइ नेते तो सेति भाई मां जो क्षीर दिया देखो जोटा फर्स्ट क्षीरटा कोलोस्ट्रम तो सेठी कोलोस्ट्रम रे सब एंटीबॉडी थादी जे कि छुआ भीतर को डायरेक्ट मिल्क थ्रू रे कोलोस्ट्रम थ्रू रे बॉडी भीतर जा छुआ रो बॉडी को प्रोटेक्ट करे एठी छुआ रो बॉडी किछि कला कि नाही मां रो क्षीर रो थिला सेटा सी ताको फीड करेला तो ता बॉडी भी पळेला सो दीज आर एग्जांपल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी है ना सो दीज आर पैसिव इम्यूनिटी सो नेक्स्ट क्लास we will discuss about vaccination what is vaccination बा वैक्सीन केमिति तैयारी होची वैक्सीन केमिति तार काम कोन तार डेफिनेशन कोन वैक्सीन तार कोन अब केते बेले निया जीवो वैक्सीन दैट इज ऑल अबाउट वैक्सीन so now the first part is of immunology is clear that is what is immunity what types of immunity how antibody looks how what is antigen what is antibody and types of immunity again and we studied about human immunity acquired immunity what is innate immunity what is acquired immunity what is active what is passive so these are all about of parts immunity but types of immunity clear so next class we will discuss about vaccine next cancer AIDS there are many things also at least more than 4 class at least will record for this topic हला आउली तुमको छुआ 4टा रु अधिक क्लास लागियो मते that means by the end of December the syllabus of your biology chapter will be completed
So let's hope so. As soon as your syllabus is completed, it will be good for you. So thank you all.